हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं दो मेन जगह कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले गुजरात में खेड़ा तहसील में आया हुआ ये डाकोर मंदिर, और दूसरी जगह मैं कवर करूँगा ठासरा में आया हुआ गलतेश्वर महादेव मंदिर। अभी यहाँ डाकोर में जो गंगानाथ महादेव मंदिर है वहाँ पे पार्किंग है, 50 रुपया में कार पार्किंग। तो मैंने यहाँ पे गाड़ी रख दी है। तो गंगानाथ पे पार्किंग में जब हमने गाड़ी रखी तो यहाँ से मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो चल के भी जा सकते हो आप, 2-3 मिनट लगेगा मैक्सिमम। भगवान श्री कृष्ण को माधव, कान्हा, केशव भी कहते हैं, और ऐसे ही उनका एक और नाम है रणछोड़ राय। राय यानी कि राजा, और रणछोड़ यानी कि द वन हु लेफ्ट द बैटल फील्ड, जो कि रण छोड़ के भाग जाए। तो जब कालेवन राक्षस के सामने युद्ध के दौरान जब श्री कृष्ण भगवान रण छोड़ के भागे, तब से उनका नाम रणछोड़ राय हुआ। तो ये पीछे आप देख सकते हो मंदिर का मेन गेट है। तो चलते हैं अंदर और करते हैं प्रभु रणछोड़ राय जी के दर्शन। यहाँ मंदिर का जो मेन गेट है उससे आगे आते ही ये मेन मंदिर है भगवान रणछोड़ राय का, और उसके पास में ही है सुवर्ण तुला स्तंभ। यहाँ पे मंदिर के अंदर वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट अगर आपको वीडियो के जरिए किसी को दर्शन करवाना है तो आप यहाँ पे पीछे देख सकते हो, स्क्रीन रखी हुई है। મારું નામ છે ડાકોરના પૂજારી જનક મહારાજ। આ ડાકોરનો ઇતિહાસ હું તમને જણાવું છું કે ભગવાન સંવત 1212 કાર્તિકી પૂર્ણિમાના દિવસે ડાકોરમાં પધારેલા। એ પહેલા કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારિકામાં હતા। સ્વદેહે સ્વર્ગમાં ગયા પછી એમનું જ્યોતિ સ્વરૂપ દ્વારિકામાં હતું। ભક્ત વિજયસિંહ બોડાણા ભક્ત થઈ ગયા ડાકોરમાં। એ અહીંથી ચાલતા દ્વારિકા જતા હતા, હાથમાં તુલસીનું કુંડું લઈને ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા। ત્યાં જઈને તુલસી ભગવાનને અર્પણ કરતા હતા। એવી 70 વર્ષ સુધી ભગવાન દ્વારકાધીશ કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ કરી। ભગવાન એમની સાથે વાત કરતા હતા। એમની ઉંમર થઈ ગઈ 70 વર્ષ, વૃદ્ધ થયા એટલે ભગવાનને કહ્યું કે હવેથી મારાથી દ્વારકા અવાશે નહીં, તમારે મારી સાથે ડાકોર, ડંકપુર નામ હતું ડાકોરનું, તો ડંકપુર ડાકોર ચાલવું પડશે। ભગવાને કહ્યું કે દ્વારિકામાંથી એક બળદગાડું લઈ આય અને હું એમાં બિરાજમાન થઉં। ફક્ત એક બળદગાડું લઈ આવે છે તો કે એમને બળદગાડું આપ્યું। એમાં સંવત 1212 રાત્રે ભગવાન દ્વારિકાના દ્વાર ખુલ્યા 12 વાગે અને ભગવાન સ્વયં બળદગાડામાં બિરાજમાન થયા। ભગવાન બળદગાડામાં બિરાજમાન થયા અને ભગવાને ભક્તને કહ્યું કે તું સુઈ જા, હું તારું ગાડું ચલાવું છું। એક અર્જુનનો રથ હાંક્યો હતો અને બીજું બોડાણાનું ગાડું ચલાવ્યું। સવારે પહેલી પરોઢે ભગવાન ડાકોરમાં પધાર્યા। બીજે દિવસે દ્વારકામાં દ્વાર ખુલ્યા તો ભગવાનનું સ્વરૂપ નહોતું। તો બધા બ્રાહ્મણો શંકરાચાર્યજી જોડે ગયા। શંકરાચાર્યએ કહ્યું કે ભગવાન તો ડાકોર છે ડંકપુરમાં, તમે બધા ત્યાં જાઓ। એટલે બધા બ્રાહ્મણો ડાકોરમાં લેવા આવ્યા ભગવાનને। ભક્ત દ્વારા ભગવાને કહ્યું કે હું તો આવવાનો નથી, પણ મારું બારોબાર વજન છે એટલું સોનું આપું તો। સ્વરૂપનું વજન 200 કિલો ઉપર હતું। ભગવાન એટલે બ્રાહ્મણોને એમ થયું કે ભગવાનને તો આવવું જ પડશે અમારી સાથે, 200 કિલો સોનું નહીં આવે। પણ ભગવાન તુલસીના પાન અને નથનીએ તોલાઈ ગયા સોનાના તાજવામાં। એ જ આ રણછોડ રાય છે। ત્યારબાદ ભગવાનને ભક્ત દ્વારા કહ્યું કે બ્રાહ્મણોને કે તમે દ્વારકા પાછા જાઓ, ત્યાં ગોમતી તળાવમાંથી 90 દિવસે જે સ્વરૂપ નીકળે એ ત્યાં પધરાવજો। બધા બ્રાહ્મણો પાછા ગયા દ્વારિકા અને ગોમતી તળાવમાંથી જે સ્વરૂપ 60 દિવસે કાઢ્યું, ભગવાનનું સ્વરૂપ નાનું છે, નેત્ર બંધ છે, એ દ્વારકાધીશ છે, એ જ આ રણછોડ રાય છે।
ભગવાન રણછોડરાય કોઈનું ઋણ રાખતા નથી. ત્યારબાદ 265 વર્ષ પહેલા આ મંદિરનું નિર્માણ થયું. ગાયકવાડ સરકારના સમયમાં તાંબેકર સરકારની આ જમીન હતી, તાંબેકર પરિવારની. એની ઉપર ભગવાને જાતે આ ડિઝાઇન કરેલું છે કડિયાનું રૂપ લઈને, અને શ્રીયંત્ર ઉપર આ મંદિર બનેલું છે. આ મંદિરનો ઇતિહાસ એવો છે કે ભગવાનની મંગળા આરતી કરે તો દિવસ મંગલમય જાય છે. સવારે ભગવાનને મંગળા આરતી થાય છે. મંગળા આરતીમાં ભગવાનને મંગળા ભોગનો લાડુ, અથાણું અને પૂરી અને દૂધ ધરાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ભગવાનને કેસરથી સ્નાન કરાવવામાં આવે છે. કેસર સ્નાન થયા બાદ ભગવાનને રોજ નવા વસ્ત્રો ધારણ થાય છે અને અવનવા સોના, ચાંદી, હીરા, મોતીના દાગીનાથી શણગાર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ભગવાનને શણગાર આરતીમાં કેસરવાળું દૂધ અર્પણ કરવામાં આવે છે અને શણગાર આરતીનો કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ભગવાનને રાજભોગા પ્રસાદ ધરાવવામાં આવે છે. રાજભોગ પ્રસાદ ભગવાનને બહુ પ્રિય છે. એમાં કઢી, લચકો દાળ, લાડુ, રોટલી, વડા, 2 શાક અને દૂધપાક ધરે છે. 265 વર્ષથી આ એક જ મેનુ છે ભગવાનનું, ઠાકોરજીને ધરાવવામાં આવે છે. એને રાજભોગ કહેવામાં આવે છે. એ રાજભોગ વૈષ્ણવો તરફથી પણ થાય છે અને ભગવાનનો એ રાજભોગ કોઈ બાધા રાખે છે કે અમારું આ કાર્ય નથી થતું તો અમે રાજભોગ અર્પણ કરીશું. ધજાજીનું મહત્વ છે. ડાકોરમાં ધજા ચડાવવામાં આવે છે. શિખર ઉપર સોનાના. પિતૃઓને શાંતિ મળે છે. મંદિર બંધાવાનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે ડાકોરમાં ધજા ચડાવવાનું મહત્વ છે. ત્યારબાદ 12 વાગે દર્શન બંધ થઈ જાય છે અને સાંજે 4 વાગે ખુલી અને 4:15 ઉસ્થાપન આરતીના દર્શન થાય છે. ઉસ્થાપનમાં ભગવાનને ફ્રૂટ્સનો પ્રસાદ ધરાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ભગવાનને સાંજે 56 ભોગ, કે જે આખા કોઈ જગ્યાએ થતો એવરીડે ભગવાનને અહીંયા 56 ભોગ ધરાવવામાં આવે છે. અને ત્યારબાદ ભગવાનની શયન આરતી થઈ અને ભગવાનને પહોળાડી દેવામાં આવે છે. ભગવાન સૂઈ જાય છે. એમને સોનાની પાવડી, સોનાની મોજડી મૂકવામાં આવે છે. અને આ નિત્યક્રમ છે રણછોડરાયનો. ગુજરાતમાં આવેલું પ્રસિદ્ધ ડાકોર યાત્રાધામ છે અને અવશ્ય દર્શન કરવા પધારો. દરેક ભાવિક ભક્તોને, વૈષ્ણવને અમારી નમ્ર વિનંતી છે. ડાકોર જેવું મહાત્મય કોઈ જગ્યાએ નથી. ભગવાન બધે સર્વવ્યાપી છે, પણ કળિયુગમાં ડાકોરમાં પધારેલા એટલે ડાકોરનું વિશેષ મહત્વ છે. જય રણછોડ, જય માખણ ચોર, જય રાજા રણછોડ. તો મંદિર વિશેની ખૂબ જ સરસ માહિતી આપી. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અને જય રણછોડ. જય રણછોડ. આ સર્વ વૈષ્ણવો તરફથી પણ જય રણછોડ. અને ખૂબ ખૂબ યુટ્યુબ ઉપર ડાકોરનું મહાત્મય નિહાળી અને ડાકોર રણછોડરાય સર્વ ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. ધજા અને રાજભોગ ભગવાનને અહીંયા પ્રત્યક્ષ ધરાવવામાં આવે છે. જય રણછોડ. तो ये जो है डाकोर का मेन मंदिर है और डाकोर का मेन मंदिर के सामने ही यहाँ पे जो है बापा लाल गोमती घोटावाड़ा, तो ये यहाँ की जो है फेमस चीज़ है. जैसे कि हम देखते हैं कि आगरा का जो पेठा फेमस है, ऐसे ही यहाँ पे गोटा फेमस है. गोटा यानी कि दूध का गोटा, गुजराती में भजिया कहते हैं, एक डिश होती है. तो वहाँ चलते हैं और टेस्ट करते हैं. जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे जो बापालाल गोटा वाला है वो बहुत टाइम से यहाँ पे है. तो किस तरह का गोटा रहता है, क्योंकि हमको पता है कि जब आगरा की बात आती है तब पेठा वहाँ का बहुत फेमस है. तो यहाँ का ये गोटा फेमस है, तो इनसे जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या राज है, किस तरह से ये स्पेशल है, तो जानते हैं इनसे. गोटा हमारी स्पेशलिटी है. ये दूध से बनता है. बरसों पहले जो लोग यहाँ दर्शन करने आते थे वो मैजाती लोग थे, तो भर के पानी नहीं पीते थे. लेकिन ये पकौड़ा जो बनता है दूध से बनता है. ये दूध आता है, इससे पवित्रता होती है ना. जो मंदी का लाडू बोलता है, यहाँ दूध का आता होता है, दूध. इससे वो प्रसाद हो गया रणछोड़ जी का. तो मैंने सुना है कि बहुत पुराना है ये, तो आपका यहाँ पे कितना टाइम हुआ? हाँ, मैं अभी 5 पीढ़ी हो गई, 6ठी पीढ़ी में मैं आ गया. ये दुकान तो 100 बरस पहले, बहुत जूनी दुकान है. मैं 6 पीढ़ी में हूँ. लेकिन ये पकौड़ा ऐसी आइटम है जो लोग डाकोर में आते दर्शन करने, वो रणछोड़ जी का दर्शन करते हैं और 100 ग्राम भी पकौड़ा खा के ही जाते. गोटा और दही इसका कॉम्बिनेशन है. ये पकौड़ा में तेजाना बहुत आता है, लविंग दर्द, बादिया सब. ऐसा बोला जाता है कि बहुत आप मसाला वाली आइटम खाओ तो एसिडिटी होती है, ऐसा बोलता है. लेकिन जो दही के साथ खाया था इससे एसिडिटी नहीं होती. ठंडा दही, गरम गोटा,
ये हमारी ठाकुर जी की स्पेशलिटी है। ये हमने जो रेट रखा है बहुत नॉमिनल रखा है। 40 रुपए का 125 ग्राम आता है, 320 रुपए किलो है। तो जैसे कि यहाँ पे बोला, तो हम खुद भी टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद आपको कहते हैं कि ये कैसा लगता है। तो ये है गोटा और स्पेशली इसे दही कढ़ी के साथ खाते हैं। तो देखते हैं। थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा स्वीट टाइप है, बट वैसे टेस्ट बहुत अच्छा है। तो इनकी जो एक ब्रांच है वो अहमदाबाद नवरंगपुरा में भी है। तो यहाँ पे एड्रेस है, आप देख सकते हो। तो अगर अहमदाबाद साइड से हो आप तो यहाँ भी जरूर जाए एक बार। नहीं, उसका जो अंदर का मावा होता है ना, वो गोटे का सूखा मसाला है और ये 2-3 महीने तक बिगड़ती नहीं। ये हमने नवी प्रोड्यूस की आइटम गोटा कचौरी, इसे गोटा कचौरी कहते हैं। तो जब यहाँ पे आना हो तो एक बार ये उन्होंने बोला गोटा कचौरी, वो भी एक बार जरूर ट्राई करें। तो पहले के समय में यहाँ पे डंक ऋषि हुआ करते थे। तो उन्होंने भगवान शिव की बहुत आराधना की, सच्चे दिल से आराधना की। तो जब शंकर भगवान ने उनको आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए और उनको बोला कि आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे डंक ऋषि ने बोला कि मुझे ये चाहिए कि आप यहाँ पे अपने शिवलिंग के रूप में विराजमान हो। तब उस समय शंकर भगवान ने उनकी आराधना को पूर्ण करते हुए यहाँ पे विराजमान हुए। तो यहाँ डंकनाथ मंदिर के सामने ही है रणछोड़ राय भगवान का मंदिर। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम करण उपाध्याय है और मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। और आप जैसे आपने पूछा कि इस जगह का महत्व क्या है, तो इस जगह का महत्व ये है कि जब भगवान को द्वारिका से लेके आए तो भोलानाथ जी भगत को भगवान ने बताया कि तुम मुझे कहीं पे छुपा दो, वरना द्वारका वाले लोग आएंगे और मेरे को वापस लेके जाएंगे। तो भगवान जी ने बताया कि तुम ऐसा करो भोलानाथ जी, तुम्हारे गांव के अंदर जो गोमती कुंड है उसके अंदर मुझे छुपा दो। तो भगवान को सबसे प्रथम जो भोलानाथ भगत थे उन्होंने गोमती कुंड के अंदर छुपा दिया। जब 15 दिन हुए तो द्वारका वाले लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ ठाकुर जी में आ पहुंचे। उनको पता लगा कि भगत नाम था भोलानाथ करके, जो भगत था वो भगवान को द्वारिका से लेके आया था। तो उन्होंने भगवान जैसे भोलानाथ जी के घर पे गए और पूछा कि भोलानाथ जी हमारे भगवान किधर है। तो भोलानाथ जी ने कुछ बताया नहीं, पर जैसे उन लोगों ने पूछा उसके पहले ही भोलानाथ जी का निधन हो गया। उन लोगों ने उनको भाला मार के मार दिया। भोलानाथ जी के सिवा किसी को पता नहीं था कि भगवान की मूर्त है कहाँ पर। तो फिर आपस में गांव में बातें होने लगी कि गोमती कुंड का पानी लाल हो गया है। सभी ने पानी में जाके देखा तो गोमती कुंड के अंदर से भगवान की जो द्वारका वाली मूर्त थी रणछोड़ राय जी की, पानी में से निकली। सभी ने जाके देखा कि भगवान की मूर्त मिल गई है, अब भाई हम वापस चले जाते हैं उनको लेके। सभी ने उठाने का प्रयास किया, फिर भी क्या किया कि भगवान ने अपनी मूर्त का वजन इतना भारी किया कि उन लोग 15 लोग भी प्रयास करने के बाद भी नहीं उठा पाए। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान ने अपने भगत के ऊपर जो वार लगाया तो उसका वार अपने ऊपर ले लिया था, इसलिए पूरा पानी लाल हो गया था। और भगवान भी गुस्से में आके अपना वजन भारी करके बैठे थे। फिर भी द्वारका वाले लोग आनाकानी करने लगे कि नहीं, ये हमारे भगवान है, हमको वापस दे दो। फिर भी भगवान ने अपना वजन हल्का नहीं किया। तब उन लोगों ने ऐसा निश्चय किया कि हम जब तक भगवान अपना वजन हल्का नहीं करते, हम खाना पीना छोड़ के ऐसे ही यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो ऐसे करते करते 10 दिन हो गए तो उसमें से एक ब्राह्मण का मृत्यु हो गया। वो लोग सोचने लगे थे ऐसे तो हमारे ब्राह्मण मरे। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो हम भगवान के प्रति सोना मांग लेते हैं। तो सोना तो गांव वालों के पास था नहीं। तो जो गंगाबाई थी वो तो विधवा हो गई थी। भोलानाथ जी की पत्नी का नाम गंगाबाई था, पर वो तो अभी विधवा हो गई थी। अभी उनके सिवा, भोलानाथ जी के सिवा उनका कोई था नहीं। पर जो भगवान जो आए थे तो भगवान जी के सिवा भी उनका कुछ था नहीं। तो भगवान ने उनके सपने में आए और बोला कि गंगाबाई जी, जैसे इन लोगों ने मेरे प्रति सोना मांग के लालच किया है तो उनके प्रति सोना तुम दे सकती हो कि तुम्हारे पिताजी ने शादी के वक्त तुमको जो नाक की बाली दी है वो एक पल्ले में रख देना, एक पल्ले में अपने आप में आ जाऊंगा। तो भगवान जब तुलादान का समय हुआ तो पीपल पे पेड़ के नीचे 2 ऐसे तराजू लगाए गए। तो एक पल्ला जो खाली था वहां पर भगवान का स्मरण किया
गांव वालों ने, द्वारका वालों ने तो भगवान की मूर्त पानी में से निकल के खाली पड़ रहा था, वहां के विराजमान हो गए। पर जैसे ही दूसरा खाली पड़ने में जितना सोना मांगा था तो सोना था नहीं, पर गंगाबाई जी के स्वप्न में भगवान ने बताया तो नाक की बाली जैसे ही रखी तो भगवान ने अपना वजन भारी में से हल्का कर दिया। फिर तुलादान के बाद भगवान को रखने के लिए बड़े मंदिर में कोई जगह नहीं थी कि बड़ा मंदिर बना नहीं था, तो उस समय में जैसे ये डंक ऋषि का जो महादेव का मंदिर है उसके बगल में डंक ऋषि का आश्रम था। ये वही जगह है कि जहाँ पर भगवान को सर्वप्रथम रखा गया। जब थोड़ा समय बीतता गया तो गोपाल कृष्ण तांबेडकर करके एक राजा थे, वो धर्म यात्रा करने निकले थे, तो उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्त यहाँ पर ऐसी हालत में है। उन्होंने बड़े मंदिर का एक निर्माण कर दिया। तो 1772 की जो संवत थी उस समय में तो गोपाल कृष्ण तांबेडकर ने बड़े मंदिर का निर्माण करके भगवान जी श्री रणछोड़राय जी को यहाँ से अपने हाथों से वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करके विराजमान किया। उस समय का जो टाइम था, उस टाइम पे महावदी पाचम यानी वसंत पंचमी के दिन भगवान को वहां प्रतिष्ठित किया गया। यानी उस मंदिर को अभी 253 साल पूर्ण हुए, और अभी जैसे भगवान को द्वारिका से डाकोर आए हुए 868 वर्ष पूर्ण हो गए। ऐसे करके यहाँ पर डाकोर जी में इस स्थान का यह महत्व है। जय श्री कृष्ण। तो अभी आए हैं गोमती घाट। आज एक्चुअली पब्लिक बहुत कम है क्योंकि आज संडे नहीं है, क्योंकि अगर संडे होता, हॉलीडे होता तो यहाँ पे बहुत पब्लिक आता। तो यहाँ पे ये है रणछोड़राय भगवान की चरण पादुका का मंदिर। जो पीछे आप देख रहे हो ये है गोमती घाट। अभी पहले जब भगवान श्री कृष्ण और महाबली भीम यहाँ से गुजर रहे थे उस टाइम पे यहाँ पे हिडिंबा वन हुआ करता था। जब वहाँ पे भीम को प्यास लगती है तो वो पानी पीते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे ऐसा बड़ा सा पानी का कोई स्रोत होना चाहिए, जैसे कि यहाँ से जो आते हैं जाते हैं उनकी प्यास बुझ सके। तो उन्होंने अपनी गदा से यहाँ पे प्रहार किया और ये हिडिंबा वन था पहले, और अभी यहाँ पे गोमती घाट हुए। भगवान द्वारका से डाकोर आए 1212 में। वक्त बुराना हो गया विजय सिंह नाम का, वो द्वारका से भगवान को लेके यहाँ आए। उनके पीछे द्वारका के ब्राह्मणों को लेने के आए, तो भगवान के बार बार सोना मांग लिया। भक्त के पास सोना था नहीं, तो गंगाबाई को बोला तेरे पास जो भी होगा मैं इससे कम हो जाऊंगा। एक पले में न रखी, एक पले में भगवान को बिठाया। सवा वर्ष से कम हुआ तो भगवान के चेहरे में तुलसी का पन्ना छोड़ दिया, तो दोनों पले सरखे हो गए। तो आकाशवाणी हुई कि धन्य धन्य गंगाबाई की वाली, सवा वाल हुआ बनवारी। जिस सवाल सोना आया ये द्वारका के ब्राह्मण लेके वापस चले गए, भगवान यहाँ रहे। तो ये है लक्ष्मी जी का मंदिर। पहले यहाँ पे रणछोड़राय जी का मंदिर हुआ करता था और वहाँ घाट से यहाँ पे स्थापित किया था। तो ये है भक्त श्री भूराना और उनकी वाइफ, उनकी जो प्राचीन बैठक है। तो भगवान रणछोड़राय कैसे द्वारिका से डाकोर आए, उनकी पूरी जर्नी यहाँ पे दिखाई गई है। गुजराती कैलेंडर के हिसाब से 1212 कार्तक सुद पूनम कैसे वो द्वारिका से डाकोर रणछोड़राय वो बैलगाड़ी चला रहे थे और वो भक्त बूढ़ाना थे, वो यहाँ पे दिख रहे, थोड़े एज वाले थे, तो वो यहाँ पे आराम कर रहे। यहाँ पे उनको छिपाया गया था। उनकी प्राचीन बैठक जो भी हमने देखी, ये लक्ष्मी मंदिर जहाँ पे पहले हमने उनको देखा, और ये जो है उनका मेन मंदिर जो कि 1772 में उनका निर्माण किया गया था। तो ये जो चौकड़ी है यहाँ पीछे आप देख सकते हो, ये पार्किंग भी है। बस स्टैंड जाना हो तो यहाँ से बस स्टैंड जा सकते हैं। हमने जो पार्किंग है वो यहाँ पीछे किया था रंगनाथ महादेव, और अभी यहाँ पे एक धर्मशाला है, वल्लभ निवास धर्मशाला, तो मैं उसकी टूर कराता हूँ। ये यहाँ रहने के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टेइंग ऑप्शन है। तो चलते हैं और यहाँ धर्मशाला की टूर करते हैं। यहाँ से जो मेन मंदिर है वो 200-300 मीटर ही है, तो करीब वॉकिंग डिस्टेंस ही हुआ। तो ये भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो।
तो यहाँ पे इस तरह की भी रूम रहती है। ये एसी रूम है और 3 बेड है, अगर चाहिए तो एक्स्ट्रा बेड भी मिलेगा। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी है। तो मैंने अभी जो आपको रूम दिखाया, तो ये एक बड़ा सा हॉल है। यहाँ पे अगर कोई फंक्शन करना हो आपको तो वो फंक्शन भी कर सकते हो, और ऊपर टेरेस में भी इतनी बड़ी जगह है कि अगर वहाँ भी आपको कुछ खाने का कुछ प्रोग्राम करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो वो रूम फिर वो बड़ा सा हॉल हो गया, और ये बड़ा सा रूम है। यहाँ पे भी 3 बेड है, अगर चाहिए तो एक्स्ट्रा बेड भी आपको मिल जाएगा। ये भी विथ एसी है। અહીંયા રૂમના ભાડા રૂમ નંબર 14-15 એનું એસીનું 1200 રૂપિયા, નોન એસીના 600 રૂપિયા. સામે મોટો હોલ છે, 50-60 માણસ બેસી શકે એવો, એનું 1500 રૂપિયા ભાડું છે. ખુરશી ટેબલ બધી સગવડ અંદર આવે, શેતરંજી આવે, જાજમ પાથરેલી આવે. બાકીના રૂમ છે 21 થી 28 નંબર, અને એસીના 1300 રૂપિયા, નોન એસીના 900 રૂપિયા ભાડું છે. બાકી સામે 18, 19, 20 3 રૂમ છે એ ડિલેક્સ જેવા જ છે. એનું એસીનું 1100 રૂપિયા, નોન એસીના 500 રૂપિયા ભાડું છે. तो ये है प्रभु रणछोड़ राय जी के मंदिर की प्रसादी, जो कि उनको राजभोग चढ़ता है। तो ये है, और नसीब से हम आज वो प्रसादी लेने वाले हैं। तो आज डेट है 3 मई 2024, और आज यहाँ पे जो मेरे साथ है, क्या नाम है? हाँ, विजय भाई शाह। तो उनकी ओर से आज मंदिर में जो राजभोग था, तो आज हमें प्रसादी लेने का मौका मिला, और ये हमारा नसीब है कि हम आज मंदिर की प्रसादी, इनकी वजह से जो मंदिर का जो राजभोग है वो लेने का मौका मिला। तो आप सबका तहे दिल से खूब खूब आभार। तो ये है डाकोर मंदिर के आसपास का लोकल मार्केट। तो देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे जो है आपको कई तरह की चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि बर्तन हो गए पुराने टाइप के, आरती पूजा के लिए कोई सामान चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो पूजा भी का सामान है, फिर मूर्ति है, वो आपको मिल जाएगी। भगवान के फोटोज भी मिल जाएंगे यहाँ। मंदिर से पार्किंग की ओर जाते हुए रास्ते में ये गायत्री माता का भी मंदिर है, बट अभी टाइम इतना हुआ है कि मंदिर बंद हो चुका है। तो एक सवाल ये भी रहता है कि यहाँ कैसे आए। तो आप बाय रोड भी आ सकते हो, अगर बाय बस आना है तो अहमदाबाद से ये डाकोर है 80 किलोमीटर्स, जो वडोदरा है वहाँ से 70 किलोमीटर्स, और आणंद से यहाँ 35 किलोमीटर्स की दूरी है। और तीनों जगह से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, और ये जो रेलवे स्टेशन है वो मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप बाय ट्रेन भी आ सकते हो। तो ये डाकोर नडियाद हाईवे पे
डाकोर से करीब 2 किलोमीटर पहले ऐसा कहा जाता है कि जो रणछोड़राय भगवान थे उन्होंने यहाँ तक रथ लेके आए थे और जो भक्त बोडाना है वो पीछे सो रहे थे। तो 2 किलोमीटर पहले ये जो मंदिर है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो है उन्होंने दातन किया था और यहाँ पे जो नीम का पेड़ है वो पेड़ की एक जो कहते हैं शाखा, वो मीठी अभी भी पाई जाती है। यहाँ पे जो है मंदिर के साथ साथ बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ गार्डन जैसा है और बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे झूला और वो भी है। तो आफ्टरनून का टाइम आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो और शाम होने के बाद आप गलतेश्वर का जो आपका प्लान है वो कर सकते हो। ये देखो, तो अभी आए हैं गलतेश्वर। अभी जो सामने आप देख रहे हो वो गलती नदी और महिसागर नदी का संगम है और जो गलतेश्वर मंदिर है वो वहां से ऊपर जाना है। तो पहले सोचा यहाँ नीचे ही आते हैं, नीचे का देखते हैं, वीडियो लेते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर ऊपर मंदिर की ओर चलेंगे और वहाँ दर्शन करेंगे। तो समर में वाटरफॉल में नहाने के लिए और वाटर एक्टिविटी करने के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है और वही एक्सपीरियंस आपको गलतेश्वर में मिलेगा। देखो ये क्या है, कैसा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ वाटरफॉल नहीं है बट आप यहाँ पे स्विम कर सकते हो और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो पूरी फैमिली आई है, जितने भी लोग आए यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। देखो अब यहाँ पे कितने अच्छे से बच्चे भी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ घूमने के बाद अगर आप कपड़े नहीं लाते हो तो ये कपड़े के ऑप्शन मिल जाएंगे। 60, 120 और 150 का रहता है। तो अगर आप कपड़े नहीं लाते हो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ चाय और गन्ने का रस भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ चेंज रूम भी है, तो वो यहाँ से कपड़े चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ था यहाँ पे, बीच जैसा माहौल था। तो यहाँ पे सामने मेन मंदिर है और हम वहाँ से नीचे से आए और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह है। यहाँ पे गार्डन भी है। મારું નામ વિષ્ણુભાઈ છે. મેં અહીંયા બહુ વર્ષોથી રહું છું, 25 વર્ષથી રહું છું. આ ગળતેશ્વર મહાદેવ બહુ પ્રાચીન છે, હજારો વર્ષો પહેલાંના છે. અહીંયા કાલો મુનિ મહારાજને દર્શન આપેલા હતા. તેમણે ભક્તિ નદી પ્રગટ કરી હતી કે જળ ભગવાનને સ્નાન કરાવી કે મહીસાગરમાં જાય છે એટલે ગળતેશ્વર મહાદેવનું નામ પડેલું છે. અને અહીંયા દિવાળીના 5 દિવસ, શિવરાત્રિ, શ્રાવણ મહિનો
અને દર સન્ડે એટલે કે રવિવારે પબ્લિક હોય જ છે. આ જાત્રાનું ધામ છે પણ લોકોએ ગવર્મેન્ટે ટુરિઝમમાં લઈ લીધું છે એટલે પિકનિક માટે લોકો બહુ આવે છે. બીજા પાંડવો પણ દર્શન કરી ગયા છે આવીને, એટલે બહુ પ્રાચીન હજારો વર્ષો જૂનું છે. પછી આ મંદિર બન્યું હશે ગમે ત્યારે, ગવર્મેન્ટે 12મી સદી લખી છે. આ શિખર મોહમ્મદ બેગડાએ ખંડિત કર્યો હતો કે ગવર્મેન્ટે 2021માં હમણાં બનાવ્યું છે. અને અમારા પૂનમે લોકો અહીંયા નદીમાં નાહવા આવે છે અને પોતાની જાતને ધન્ય અનુભવ કરે છે, મહાદેવના દર્શન કરી. અને અહીંયા હજારો લાખો પબ્લિક આવે છે દર્શનો માટે. દર્શન કરી નદીમાં નાહે અને ધન્ય પામે છે. અગત્યેશ્વર મહાદેવ એક જાત્રાનું ધામ છે. જય મહાદેવ. तो गलतेश्वर मंदिर के एग्जैक्ट पीछे ये प्लेटिनम वन है, गवर्नमेंट द्वारा निर्माण किया गया है और अभी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। ये जो गार्डन है, ये गार्डन गांधी जी को केंद्र में रखते हुए बनाया गया है और उनके ऐसे कई वर्ड्स भी यूज किए हैं, जैसे कि रेंटियोन हो गया, दांडी पथ हो गया। तो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो करते हैं इसी के साथ वीडियो को एंड। તમને આ વિડીયો ગમે તો તમે લાઈક શેર સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. જય રણછોડ. तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।